یہ کہانی برسوں پرانی ہے، ایک ایسی کہانی جو بدلے اور انتقام کے جذبے سے بھری ہوئی تھی۔ جہاں کوئی محبت میں چل رہا تھا تو کوئی عہد وفا نبھا رہا تھا، اور کچھ لوگ اپنے ماضی کے زخموں کے ساتھ آگ میں جلتے رہے۔ سرد ہواؤں کا موسم تھا، کوئٹہ کی گلیوں میں تھر تھراتی ہوا چل رہی تھی، اور کراچی کی روشنیاں کچھ دھندلی لگ رہی تھی۔ ایک چھوٹا بچہ چیخ رہا تھا، چھوڑ دو مجھے، جانے دو، مگر اس کی پکار کا کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ آنسو بہاتا رہا، سسکتا رہا، اور ایک عجیب سی خاموشی پورے منظر پر چھا گئی۔ پھر کہانی آگے بڑھتی ہے۔ ایک یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھی چند لڑکیاں ہنسی مذاق میں مصروف تھیں۔ آج تو سر نے لگتا ہے قسم کھا لی ہے بور کرنے کی۔ ہاں یار، لیکچر کا وقت ختم ہونے کا شکر ہے، مجھے تو بھوک سے چکر آنے لگے تھے، چلو جلدی سے کھانے پر چلتے ہیں۔ وہ سب ہنستے ہوئے کینٹین کی طرف بڑھ گئے، لیکن انہی لمحوں میں ایک خطرناک سازش تیار ہو رہی تھی۔ ایک ایسی سازش یونیورسٹی کا ماحول ہنسی مذاق سے بھرا ہوا تھا۔ کلاس ختم ہوتے ہی سب لڑکیاں کینٹین کی طرف بڑھ گئیں۔ شکر ہے لیکچر ختم ہوا، یار مجھے تو بھوک سے چکر آ رہے تھے۔ سمین، حنا اور انیا تینوں گہری دوست تھیں۔ وہ ہمیشہ ہنسی مذاق میں رہتی تھیں، مگر آج کچھ الگ تھا۔ انیا کی آنکھوں میں اداسی تھی، وہ چپ چاپ بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی۔ حنا نے نوٹس سے نظریں ہٹا کر انیا کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے انیا، کب سے تم خاموش بیٹھی ہو؟ منا بھی پھلایا ہوا ہے۔ انیا نے بھی مشکل مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس کل مباصل آ رہا ہے۔ حنا نے شرارتی انداز میں آنکھ ماری۔ اووا، تو بات یہ ہے؟ سمین نے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں واقعی اس سے محبت ہے؟ انیا نے نظریں جھکا لی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، آواز بھرا گئی۔ شاید ہاں، مجھے لگتا ہے محبت ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جس کا وہ انتظار کر رہی ہے وہ کسی اور ہی مقصد کے لیے واپس آ رہا ہے۔ ایک راز، ایک سازش جو ہر رشتہ، ہر خواب اور ہر اعتماد کو توڑ دے گی۔ آگے جاننے کے لیے باب 3 ضرور سنیں۔ دن کے اختتام پر شہر کی سڑکیں سنسان ہو رہی تھیں۔ ایک گاڑی آہستہ آہستہ یونیورسٹی کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ انیا، سمین اور حنا ابھی تک باہر کھڑی انتظار کر رہی تھیں۔ انیا کی نظریں بے قراری سے راستہ تک رہی تھیں۔ جیسے ہی گاڑی رکی، انیا کی آنکھوں میں روشنی سی چمکی۔ ہائے بھائی! وہ خوشی سے گاڑی کی طرف بڑھی، مگر پھر جیسے وقت تھم گیا۔ گاڑی سے اترنے والا وہ چہرہ تھا، مباصل، خاموش، سنجیدہ، مگر نگاہوں میں کچھ کہنے والا۔ انیا نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ السلام علیکم بھائی۔
मुबासल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो उनिया? मगर उसके लहजे में वो पुरानी अपनायत नहीं थी। हाइम ने बात बदलते हुए कहा, चलो सब चलें, देर हो रही है। गाड़ी में बैठते हुए उनिया की नजरें मुसलसल मुबासल को तक रही थीं। दिल की धड़कन कुछ कह रही थी, लेकिन मुबासल की खामोशी कोई राज छिपा रही थी। कहानी आगे बढ़ती है बाब 4 में। बाब 4 खफिया मुलाकात। दबी के एक परताइश आफस में 2 अफराद खफिया गुफ्तगू में मसरूफ थे। वो दोनों फौजी वर्दी में मलबूस थे, मगर उनकी बातों में कोई जंगी मंसूबा नहीं, बल्कि एक इंतकामी मशन छिपा था। आज रात हमें हर हाल में उमरान को गिरफ्तार करना होगा, जनरल ने दब्बे लहजे में कहा। अगर वो इस बार भी बच गया तो मुल्क में समगलन का नीट वर्क मजीद फैल जाएगा। दूसरे अफसर ने सिर हिलाते हुए कहा, मुबासिल और हाइम दोनों तैयार हैं, वही इस मिशन के लीड होंगे। इसी लम्हे दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुआ मुबासिल आफन, वर्दी में, संजीदा चेहरा, नजरें तेज। जनरल साहब, आपका हुक्म सिर आंखों पर, उमरान इस बार बचेगा नहीं। जनरल ने कहा, याद रखो, ये सिर्फ मुशन नहीं, ये तुम्हारे माजी का अधूरा वादा भी है। मुबासिल खामोशी से पलटा और दिल में दहरा रहा था, आहद किया था मैंने और अब उसे पूरा करके रहूंगा। बाब 5 यादें, जख्म और अहद। रात की तारीकी में लाहौर की ठंडी हुआ चल रही थी। एक लड़की चुपचाप छत पर बैठी आसमान को तक रही थी। इसकी आंखों में उदासी और दिल में खालीपन था। वो लम्हा याद आ रहा था जब बचपन में इसके सामने उसके वालिदीन को गोली मार दी गई थी। माँ की गोद खाली हो गई, बाप का हाथ ठंडा पड़ गया और वो छोटी सी बच्ची सदमे में बेहोश हो गई। जा की आंखों में आंसू तैरने लगे। अम्मी, अब्बा, मैंने वादा किया था, आपके कातिल को नहीं छोड़ूंगी। नीचे से आवाज आई, जा नीचे आ जाओ, ठंड लग जाएगी। वो बीबी की आवाज थी। बीबी ने नरमी से कहा, बेटा, बदला इंसान लेता है, इंसाफ रब देता है। जा ने कहा, मैं अपनों के खून का हिसाब लेकर रहूंगी। बाब 6 पहली झलक इंतकाम की दूसरी तरफ। एक पिरानी फैक्ट्री में उमरान और इसके साथी बैठे प्लानिंग कर रहे थे। हमारी अगली खीप कल रवाना होगी, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तभी एक आवाज गूंजी, यहाँ से एक भी गाड़ी नहीं जाएगी। सबने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। मुबासिल आफन दाखिल हो चुका था, हाइम के साथ, बंदूकें तनी,
आवाजें बुलंद हुईं, फायरिंग शुरू हुई, लेकिन इस बार उमरान के आदमी बेबस थे। मुबासल ने उमरान को जमीन पर गिराकर कहा, ये सिर्फ कानून का केस नहीं है, ये जाती बदला भी है। उमरान हंसा, तुम समझते हो सब खत्म हो गया, खेल तो अभी शुरू हुआ है। मुबासल की आंखों में आग सी थी। मैं वही मुबासल हूँ जिसके वालिदीन को तुमने मारा और अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। क्या मुबासल उमरान को गिरफ्तार करेगा या कुछ नया होगा? जानिए बाब 7 में। बाब 7। फरेब की पहली परत इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अब भी चेहरे पर थी। तफ्तीशी रूम में मुबासल उसके सामने बैठा था। बिताओ उमरान, तुम्हारा नीट वर्क कहाँ है? उमरान ने आंखें मौंद लें। नीट वर्क? तुम्हें लगता है सब मेरे दम पर है? उसली दिमाग तो तुम्हारे आसपास ही है। मुबासल चौंका। क्या मतलब? उमरान ने धीरे से कहा, जिस पर तुम भरोसा करते हो वही तुम्हें मरवाएगा। मुबासल के माथे पर पसीना आ गया। वो फौरन कमरे से बाहर निकला। दिल में सवालों का तूफान था। कौन? किस पर वो अंधा एतमाद कर बैठा है? साजिश की गरहें खुलने लगी हैं। बाब 8 सने। बाब 8। एतबार का इम्तिहान। इनिया कमरे में किताबें समेट रही थी जब फोन बजा। मुबासल। इनिया, क्या तुम हाइम को जानती हो अच्छी तरह? इनिया चौंकी। क्या मतलब? वो तो बचपन से मेरे भाई जैसे है। मुबासल की आवाज सख्त थी, मगर शायद वो वैसा नहीं है जैसा दिखता है। इनिया ने डरी हुई आवाज में कहा, मुबासल, तुम कहना क्या चाहते हो? मुबासल ने काल काट दी। वो उलझा हुआ था। क्या वाकई हाइम पर शक करना सही है? इसी लम्हे एक खफिया कैमरे से निकली हुई वीडियो इसके हाथ लगी। हाइम किसी अजनबी के साथ बैठा कुछ रकम ले रहा था। मुबासल के दिल में खंजर सा लगा। ये झूठ नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये सच है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बाब 9। बेनकाब चेहरा। रात की तारीकी में मुबासल ने हाइम को बुलाया। वो दोनों शहर से बाहर एक वीरान मकाम पर खड़े थे। ये वीडियो देखो हाइम। हाइम ने वीडियो देखकर नजरें झुका लें। मैं सब कुछ बता सकता हूँ, मगर तुम्हें यकीन करना होगा। मुबासल की आवाज थरथरा रही थी। क्यों किया तुमने ऐसा? हाइम ने आहिस्ता से कहा, मैं मजबूर था। अगर मैं वो पैसे न लेता तो जा की जान खतरे में थी। मुबासल चौंका। जा? वो इसमें कहाँ से आ गई? हाइम ने नजरें उठाईं। जा सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है। मुबासल खामोश हो गया। दिल में गुस्सा, दुख और उलझन का तूफान था। क्या जिसे दुश्मन समझा वही असल मुहाफिज है, और जिसे अपना समझा वही खंजर लिए खड़ा है। अब पर्दे उठने लगे हैं। आगे जाने बाब 10 में।
बाब 10 खामोशी का तूफान। जा अपने कमरे में बंद बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में इत्तराब। मुबासल और हाइम दोनों की बातें सुन चुकी थी। क्या वाकई मेरे पीछे सब कुछ हो रहा था? क्या मैं उन दोनों के लिए कमजोर कड़ी बन गई? वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करने लगी, क्या मैं सिर्फ एक मेहरा हूं या मैं भी कुछ कर सकती हूं? अचानक दरवाजा बजा। बीबी अंदर आए। उनकी आंखों में माँ जैसी फिक्र थी। बेटा, खामोश रहना हार मान लेना नहीं होता, मगर बाज औकात खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। जहां ने बीबी का हाथ थामा। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी बीबी, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी। बाब 11 राज जो खून से लिखा गया। रात के 2 बजे एक खफिया मकाम पर मुबासल और एक बुजुर्ग शख्स की मुलाकात हुई। क्या आप वही हैं जो मेरे वालिद को जानते थे? बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, न सिर्फ जानता था बल्कि तुम्हारे बाप का राज भी मेरे सीने में दफन है। मुबासल चौंक गया। कौन सा राज? बुजुर्ग ने एक पुराना खत निकाला। ये तुम्हारे वालिद का आखिरी खत है जिसमें उसने तुम्हारे लिए सब कुछ लिख छोड़ा था। मुबासल ने खत खोला। बेटा, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो जान लो तुम्हारे दोस्त और दुश्मन एक जैसे चेहरे लिए होंगे। मुबासल के हाथ कांपने लगे। तो जो कुछ मैं समझ रहा था वो सब झूठ था या असल कहानी अभी बाकी है? बाब 12 धुका और दुआएं। अनिया अपने कमरे में तस्बीह हाथ में लिए बैठी थी। उसका दिल बेचैन था। मुबासल के रुइये में सर्दी, जा की खामोशी और हाइम की गैर मौजूदगी, सब कुछ उसके दिल को तोड़ रहा था। या अल्लाह, जो सच है वो सामने ला, जिसे मैं चाहती हूं। अगर वो मेरे हक में नहीं तो मुझे सब्र दे। अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, नामालूम नंबर। आवाज आई, अगर तुम मुबासल से प्यार करती हो तो उसे रोको। वो जिस मिशन पर जा रहा है वो उसकी जान ले सकता है। अनिया ने चीख कर पूछा, कौन हो तुम? क्या कहना चाहते हो? काल बंद हो गई। अनिया का दिल कांप रहा था। या अल्लाह, मुबासल को अपनी अमान में रखना। बाब 13 धमाकी और दहला देने वाली हकीकत। शहर की एक वीरान गली में मुबासल, हाइम और फोर्सेस का छापा पड़ा। धमाकों की आवाजें, गोलियों की बौछार और इसी दौरान एक छोटा सा बच्चा जख्मी हो गया। मुबासल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बच्चे को उठाया और महफूज जगह पहुंचाया। मगर जब वो वापस लौटा तो सामने वो शख्स खड़ा था जो बरसों से मर चुका समझा जाता था। मुबासल ने हैरत से कहा, तुम तो मर गए थे। वो मुस्कुराया, कभी कभी मौत भी धोखा दे देती है और मैं तुम्हारे खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। मुबासल की आंखें सर्ख हो गईं। अब मैं तुम्हें वो सजा दूंगा जो बरसों से धारी है। दे बाब 10 खामोशी का तूफान। जा अपने कमरे में बंद बैठी थी, आंखों में आंसू,
दिल में इत्तिराब, मबासल और हाइम दोनों की बातें सुन चुकी थी। क्या वाकई मेरे पीछे सब कुछ हो रहा था? क्या मैं इन दोनों के लिए कमजोर कड़ी बन गई? वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करने लगी। क्या मैं सिर्फ एक मेहरा हूँ या मैं भी कुछ कर सकती हूँ? अचानक दरवाजा बजा। बीबी अंदर आए। उनकी आंखों में माँ जैसी फिक्र थी। बेटा, खामोश रहना हार मान लेना नहीं होता, मगर बाज औकात खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। जान ने बीबी का हाथ थामा। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी बीबी, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी। बाब 11 राज जो खून से लिखा गया। रात के 2 बजे एक खफिया मकाम पर मुबासल और एक बुजुर्ग शख्स की मुलाकात हुई। क्या आप वही हैं जो मेरे वालिद को जानते थे? बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा। न सिर्फ जानता था, बल्कि तुम्हारे बाप का राज भी मेरे सीने में दफन है। मुबासल चौंक गया। कौन सा राज? बुजुर्ग ने एक पुराना खत निकाला। ये तुम्हारे वालिद का आखिरी खत है, जिसमें उसने तुम्हारे लिए सब कुछ लिख छोड़ा था। मुबासल ने खत खोला। बेटा, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो जान लो तुम्हारे दोस्त और दुश्मन एक जैसे चेहरे लिए होंगे। मुबासल के हाथ कांपने लगे। तो जो कुछ मैं समझ रहा था वो सब झूठ था, या असल कहानी अभी बाकी है? बाब 12 धोखा और दुआएं। इनिया अपने कमरे में तस्बीह हाथ में लिए बैठी थी। इसका दिल बेचैन था। मुबासल के रवैये में सर्दी, जाकी खामोशी और हाइम की गैर मौजूदगी, सब कुछ उसके दिल को तोड़ रहा था। या अल्लाह, जो सच है वो सामने ला, जिसे मैं चाहती हूँ। अगर वो मेरे हक में नहीं तो मुझे सब्र दे। अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, नामालूम नंबर। आवाज आई। अगर तुम मुबासल से प्यार करती हो तो उसे रोको। वो जिस मिशन पर जा रहा है वो उसकी जान ले सकता है। इनिया ने चीख कर पूछा, कौन हो तुम? क्या कहना चाहते हो? काल बंद हो गई। इनिया का दिल कांप रहा था। या अल्लाह, मुबासिल को अपनी अमान में रखना। बाब 13 धमाकी और दहला देने वाली हकीकत। शहर की एक वीरान गली में मुबासल, हाइम और फोर्सेस का छापा पड़ा। धमाकों की आवाजें, गोलियों की बौछार, और इसी दौरान एक छोटा सा बच्चा जख्मी हो गया। मुबासल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बच्चे को उठाया और महफूज जगह पहुंचाया। मगर जब वो वापस लौटा तो सामने वो शख्स खड़ा था जो बरसों से मर चुका समझा जाता था। मुबासल ने हैरत से कहा, तुम तो मर गए थे। वो मुस्कुराया। कभी कभी मौत भी धोखा दे देती है, और मैं तुम्हारे खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। मुबासल की आंखें सरख हो गईं। अब मैं तुम्हें वो सजा दूंगा जो बरसों से इद्धारी है।
14 बेआवाज चीख जा अस्पताल में मौजूद थी, जहां वो जख्मी बच्चा जिंदगी और मौत की कशमकश में था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, जा की आंखों से आंसू रख नहीं रहे थे। मैंने बचपन में अपने माँ बाप को खोया, अब ये बच्चा भी नहीं। वो दुआ मांग रही थी, या अल्लाह उसे जिंदगी दे, मुझे बदला नहीं, ये बच्चा चाहिए। तभी डॉक्टर बाहर आया। बच्चा खतरे से बाहर है। जा ने सजदा शुक्र अदा किया, मगर दिल में एक सवाल बाकी था, आखिर इन सब तबाहियों के पीछे कौन है? बाब 15 पर्दा उठने लगा। मुबासल और हाइम ने इस आदमी की शनाख्त करवाई जिसे सब मुर्दा समझते थे। वो था नौमान आफंद मुबासल का चचा, जिसे सब ने खो दिया था। तुम जिंदा कैसे रहे? तुमने झूठ क्यों बोला? नौमान ने कहा, तुम्हारे बाप को मारने का मंसूबा मैंने बनाया था, क्योंकि मैं सब कुछ हासिल करना चाहता था। मुबासल की आंखें खून अगलने लगे। तुमने मेरे वालिद को मारा और अब मुझसे छीनना चाहते हो सब कुछ। नौमान बोला, अब देर हो चुकी है, खेल शुरू हो चुका है। क्या मुबासल अपने चचा के खिलाफ जंग जीत पाएगा? सुने बाब 16 दिल टूटने की आवाज। इनिया को पता चल चुका था कि मुबासल जाके करीब होता जा रहा है। इसका दिल टूट चुका था। मैंने मोहब्बत की, खुलूस दिया, मगर शायद मैं उसके दिल में कभी नहीं रही। वो नादान आंखों से आसमान को दिखने लगी। बीवी ने पास बैठकर कहा, बेटा, अगर किस्मत में ना हो तो जबरदस्ती मोहब्बत को कैद नहीं किया जा सकता। अनिया ने धीरे से सिर हिलाया। बीवी, मैं अब सिर्फ दुआ करूंगी कि जो सच्चा हो वही नसीब बने। बाब 17 फैसला करीब है। मुबासल ने फोर्सेस के साथ मिलकर नौमान के नेट वर्क पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। जाह ने मुबासल को रोकते हुए कहा, ये रास्ता खून का है, क्या तुम वाकई तैयार हो? मुबासल ने गहरी सांस ली। ये बदला नहीं, फर्ज है, और मेरे वालिदीन के खून का हिसाब भी। जा की आंखों में आंसू थे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुबासल मुस्कुराया, अगर मैं न लौटा तो जान लेना मैं तुमसे मोहब्बत करता था। जाके आंसू गर गए और मुकद्दर ने नई करौट लेना शुरू कर दी। बाब 18 आखिरी हमला। फोर्सेस, मुबासल और हाइम नौमान आफंद के मरकजी अड्डे तक पहुंच चुके थे। शदीद फायरिंग, धमाके और जान की बाजी। मुबासल ने दुश्मनों को पछाड़ते हुए आखिरकार नौमान को घेर लिया। तुम्हारा खेल खत्म चचा, नौमान ने हिंसते हुए कहा। मौत से डर नहीं लगता, मगर मेरे बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। एक आखिरी गोली चलने की आवाज आई। कौन बचा, कौन गया? ये जाने बाब 19 में। बाब 19 मौत और मुआफी। नौमान जख्मी हालत में जमीन पर गिरा हुआ था। मुबासल ने उस पर बंदूक तानी, मगर जाह ने रोक लिया। उसे मत मारो, ये फैसला अब अल्लाह का है। मुबासल की आंखें नम हो गईं। अगर मैं उसे छोड़ दूं तो क्या इंसाफ मुकम्मल हो जाएगा? जाह ने कहा, अगर तुम उसे मारते हो तो तुम और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? मुबासल ने बंदूक नीचे रख दी। मैं उसे कानून के हवाले करता हूँ। बाब 20 सुकून का लम्हा। कई माह बाद जाह बाग में बैठी कुरान पढ़ रही थी। मुबासल खामोशी से करीब आया और धीरे से कहा, मैं लौट आया हूँ। जाह ने मुस्कुरा कर कहा, लौटना आसान नहीं था, मगर तुमने खुद को जीत लिया है। बीबी ने दुआ दी, रब दोनों को सुकून दे। जिन्होंने सब्र किया वही कामयाब हुए। फजा में रोशनी थी और एक नई कहानी शुरू होने जा रही थी, मगर अहद-ए इंतकाम मुकम्मल हो चुका था।
यूं मुकम्मल हुआ एक सफ़र जहां मोहब्बत, इंतकाम, सब्र और कुर्बानी सब कुछ एक साथ था। कुछ चेहरे बदल गए, कुछ नकाब उतर गए, कुछ रिश्ते बिखर गए और कुछ सब्र से जड़ गए, मगर आखिर में वही लोग जीते जिन्होंने बदला नहीं, माफ़ी को चुना। अहद इंतकाम सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये सब था कि ताकतूर वही है जो मुआफ कर दे। शुक्रिया कि आपने इस सफ़र में साथ दिया। इंशाअल्लाह फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। इख्तिताम।